ان کے وطن سے ہے مجھے عشق، ان کی گلی سے ہے مجھے عشق، ہے تو علی سے ہے مجھے عشق، ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق، ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ومن مات حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ومن مات بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات کافرا، او کما قال۔ غوث اعظم والے بے سر و ساما مدد، قبلہ ابنی مدد، کعبہ ایمان مدد، ما قضائے تو سلطان دو عالم ہستی، از اقتدار تمنا یا سہیل مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الجود والکرم، منبع والعلم والحکم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ سلاما سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا سبق حاصل کیا، اور حدیث پاک کا جو دو جز آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ کے تحت اور حدیث پاک کے مفہوم کے صحیح معنی اور مطلب آپ کے سامنے پیش کرنے کی مجھے نیک توفیق عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کیا کو کہا ہے کہ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام
یزیدیو زندہ میرا امام ہے. مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ ایسا پاکیزہ عظمت والا گھرانہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. ارے سونا کو سونی پہچانے گا یا سدھار پہچانے گا؟ سونا ہے، اب اس کو سدھار کے پاس میں لے کے جاؤ گے وہ کہے گا کہ ساگوان کا لکڑی ہے. یہی تو ہے نا. تو اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. بے ادب گستاخ نجدی وہابی کو بتا دے اے حسن. اس میں یہ وہابی کا لفظ میں لگا رہا ہوں کیونکہ برادر اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو. اور آج کے زمانے میں کھلے عام یہ وہابی دیوبندی جو ہے نا امام حسین کا گستاخی کرتے ہیں. اس کے لیے میں جو لگا رہا ہوں ترمیم کر رہا ہوں کوئی غلط نہیں ہوگا. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان کہتے ہیں. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا اسلام کو پسند کیا ہے اور اسلام کے ماننے والے کو ہی مسلمان کہتے ہیں. میں نے گزشتہ آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کیا تھا کہ اسلام کے بنیادی اصول 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. سب سے پہلا ایمان، توحید و رسالت. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے یہیں پہ پتہ چل جائے گا یہ ہیں اور تھے. فرق ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول ہیں مطلب ہے ابھی حاضر کا سیدہ ہے. اور کچھ ایسے نادان کہتے ہیں کہ مر گئے مٹی میں مل گئے. مان اللہ اگر مل گئے ہوتے تو آج اگر کوئی گولے کو اسلام میں ہم داخل کرتے تو اس کو کلمہ پڑھاوے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول تھے. آج اگر کوئی گولے کو کلمہ پڑھاتے لیکن آج بھی ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ہے. اس سے پہلے جب میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تو بھی تھے تو بھی موجود، اور دنیا میں آنے کے بعد میں تو بھی موجود، اور دنیا سے پردہ کرنے
बुखारी शरीफ में मेरे किताबों में बुखारी में भी पढ़ा है, दूसरे हदीस पाक में भी पढ़ा, उलमा किराम बयान करते हैं सही बुखारी कि जब बंदा इंतकाल कर जाता है, उसके अजीज और अकरबा उसको कब्र में लिटाते हैं, तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, लंबे लंबे दांतों से कब्र को चीर कर आते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं, मुर्दा दिखता है, आने के बाद में झिझोड़ कर बैठा देते हैं, अगर आशिक होगा तो उसका तो मामला अलग है। फिर सवाल होगा, क्या सवाल होगा? बुखारी का इबारत है कि मर्द रब का तेरा रब कौन, माँ दीनों का तेरा दीन क्या? ये सवाल को आप जहन में रखना। मर्द रब का तेरा रब कौन, माँ दीनों का तेरा दीन क्या? फिर दूसरी इबारत कहेंगे कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो उस वक्त उस कब्र में एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग जिनका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जलवा फरमा होंगे, रसूल आदम तशरीफ लाएंगे मुर्दे के कब्र में और फरिश्ते इशारा करेंगे, तो दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? बात समझना। चलो आज हमारे बीच में कोई इंतकाल कर गया तो फरिश्ते आके कहेंगे तो दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? ठीक है, लेकिन जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तमाम सहाबा के खुदमुत में हैं, हज़रत सलमान फारसी या और दीगर सहाबा का इंतकाल हो गया मेरे नबी के मौजूदगी में, अब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस उस मुकद्दस प्यारे सहाबी को अपने साथ लेकर गए जन्नतुल बकी में, मिट्टी सुपुर्द किया, जिना खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब उलमा फरमाते हैं और बाद रिवायत के मुताबिक कि जब बंदा 40 कदम हटता है तो फरिश्ते सवाल करते हैं। अब मेरे आका भी सहाबी को मिट्टी सुपुर्द किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे हाथ रखा और आगे बढ़ने लगे। हज़रत फारूक आजम भी नबी को देख रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी भी नबी को देख रहे हैं, हज़रत मौला अली भी नबी को देख रहे हैं, हज़रत तलहा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी को देख रहे हैं, असराए मुबस्सरा सब नबी को देख रहे हैं। अब मुर्दा जो है कब्र में वो भी सहाबी है, फरिश्ते आए सवाल कर रहे हैं, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और तू इनके बारे में क्या कहता है? सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, मेरा नबी अभी एक वक्त में जमीन के ऊपर भी है, मेरा नबी अभी एक वक्त में जमीन के अंदर भी है, मरने वाला मौत का मजा चखने वाला वो भी नबी को देख रहा है, नबी का दीदार करने वाला हयात होकर दुनिया में वो भी नबी का दीदार कर रहा है। अब मुझे बता दिया जाए नबी मुर्दा है या अल्लाह, अब मुझे बता दो मेरा नबी जिंदा है या मुर्दा, मेरा नबी जमीन के ऊपर भी जिंदा है, मेरा नबी जमीन के अंदर भी जिंदा है, इसीलिए तो पहले के दादा कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, नहीं जिसमें आलम से झुक जाने वाले ताकत से खाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। पता क्या चला? पता चला नबी है, ये मानना होगा नबी है, कब्र के अंदर में भी है, जमीन के ऊपर में भी है, वो हमारे हालदार से वाकिफ है। तो सबसे पहले जब बंदे के अकीदे में ये मजबूत हो गया नबी है, तब उस पे नमाज पढ़ते हैं, अरे तब उस पे नमाज लाजिम होगी। नबी थे कहने वाले पे नमाज लाजिम नहीं है, नबी है जब कहेगा तब नमाज लाजिम। तो अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 हैं। ईमान मुकम्मिल हो गया, अब हुक्म हुआ कि वाक़िमुस सलाह, नमाज पढ़ो, वातुस ज़कात, ज़कात दो, माह रमज़ान के रोजे रखो, हज करो। अब ये हो गया मामला। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने करबला के मैदान में वो भी नमाज के दावा करने वाले थे और इधर नमाज कायम करने वाले थे। सुभान अल्लाह।
ادھر 22,000 کے قلعہ اور ادھر 72 شیر نر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر 72 نماز قائم کرنے والے اور ادھر نماز پڑھنے والے. لیکن قربان جاؤ ادھر بھی اذان کا معاملہ ہے, ادھر بھی اذان دینے والے. ارے ادھر کی اذان تو اب سنو گے تو حیرت میں ہو جاؤ گے. ادھر کی اذان بھی الگ ہوتی ہے. ادھر 30 پارہ کے قرآن کو سینے میں بسانے والے, ادھر 40 پارہ کے قرآن کا دعویٰ کرنے والے. دونوں ایک ہیں. ادھر بھی داڑھا والے اور ادھر داڑھی مبارک والے. ادھر بھی پگڑا والے اور ادھر امامہ والے. ایک ہی نہیں تھے. ادھر پگڑا یعنی پگڑا والے تھے اور اس سائڈ میں امامہ والے تھے. تو اسی لیے قرآن فرماتے ہیں نا کہ تاج والے دیکھ کے تیرا امامہ نور کا. سبحان اللہ. پگڑی نہیں, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سب جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. سب جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. تو محترم حضرات, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انسان جو ہے نا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اب جس نے دیکھ لیا تعداد ہے, ادھر کی تعداد کی طرف چلا گیا. لیکن یاد رکھو چاہے ادھر کتنا ہی شیر کا کھال پہن لے, گولی اس کی ادھر کی ہوگی, وہ شیر نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے وہ ہندوستان کے سرزمین پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرے, ان کا ایک حالت تھا, اے لوگو ادھر کے 100 سال کے زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. وہ بادشاہ کون تھے؟ ٹیپو سلطان تھے. سبحان اللہ. یہ ایسے ویسے کوئی سلطان نہیں تھے, وہ میرے غوث اعظم کے چاہنے والے تھے. ان کے شمشیر میں میرے غوث اعظم کے نام مبارک لہن یعنی جلی الفاظ میں یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کا خود کرایا گیا تھا. انہوں نے اپنے دربار میں غوث اعظم کے نام کو تعریف بنایا تھا. تو اسی لیے جب ان کی شمشیر اٹھتی تھی تو حق کو حق اور باطل کو باطل کا فرق کر دیا کرتی تھی. تو محترم حضرات, لیکن آج ہم نے یعنی جو ہے اس سوچ اور فکر کو ہم بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس کے سبب جو ہے آج ہم پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے. لیکن اسلام نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے, روزہ رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے. اگر آپ کہو کہ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے تو پھر آپ شیطان کو مردود نہیں کہہ سکتے. جب قرآن کھولو گے نا, اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو سب سے پہلے شیطان کو مردود کہو. مردود سمجھتے ہیں, کہیں کا بولی کہیں کا گالی ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں مردود شیطان سے. مردود جانتے ہیں اس نے 650 کروڑ برس تک سجدہ کیا, نماز پڑھی. کتنے برس تک؟ 650 کروڑ برس تک نماز پڑھی. صرف ایک سجدہ اس نے نبی کی محبت میں, نبی کی تعظیم میں نہ کی, وہ مردود ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہم چاہے کتنا نماز پڑھ رہے, کتنا روزہ رکھ رہے, کتنا زکات دے رہے, اگر تعظیم مصطفیٰ دل میں نہیں ہے وہ نماز کام آنے والی نہیں ہے, وہ روزہ کام آنے والی نہیں ہے, زکات کام آنے والی نہیں ہے. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہے, وہ قبر کی تیاری کر رہا ہے, قبر میں نماز اس کے کام آئے گی, نماز آئے گی بچانے کے لیے آئے گی, روزہ اس کے ڈھال بن جائیں گے. لیکن جب ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت حسین کی محبت کام آئے گی. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں کی جائے گی جب ایمان کی سرد محسر میں, جو بھی سنی ہے وہ کہہ دے گی کہ سجدہ دیکھو رب کے محبوب کا جلوہ دیکھو, جائے لو آؤ میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اب بخاری میں حدیث پاک میں آیا کہ پوچھا جائے گا پر رب کا, تیرا رب کون, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا پوچھا جائے گا, تیرا دین کیا. اب دین کیا ہے ہمارا؟ جی حوالہ
90 लाख को समझा दिया। कितने को समझाया? उन्हीं 90 लाख में से हम हैं, है कि नहीं? हाँ, अगर किस्मत वाला किस्मत गरीब नवाज के साथ 40 आए थे तो उनके नस्ब का होंगे तो वो भी और बात अलग है। लेकिन उन 90 लाख में जो समझाया जिसको, तो जो समझ गए उनकी औलादों में से हम होंगे, है कि नहीं? तो मेरे गरीब नवाज से पूछो, अरे आका, जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर आप आए तब तक कि हमें दिन मिला नहीं था, आप दिन लेके आए, तो आप बताओ, कब्र में सवाल होगा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है, हमें बता दो। अभी दुनिया में बता दो कि हम कब्र में जाके तो फरिश्तों को कह देंगे। तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाह हस्ते हुसैन, हुसैन सरदार है, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन बादशाह भी है, दीन हस्ते हुसैन। फारसी लफ्ज है, शायद आपको पता नहीं चलेगा, तो किसी मुफ्ती साहब से जाकर पूछना कि जिया मस्जिद का मौलाना ने कहा कि हुसैन दीन, दीन हस्ते हुसैन। हुसैन क्या है? अरे बोलिए, हुसैन क्या है? कौन कह रहा है? गरीब नवाज, गरीब नवाज कह रहे हैं हुसैन, और कब्र में फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा दीन क्या है? अरे बोलिए, तेरा नमाज नहीं, तेरा दीन रोजा नहीं, तेरा दीन नीली बांटना नहीं, तेरा दीन मकान बांटना नहीं, तेरा दीन जमात में जाना नहीं, तेरा दीन किस्त देना नहीं, बेवाओं का शादी करना नहीं, तो फिर है क्या? दीन आपका हुसैन, हुसैन की मोहब्बत दीन है। दीन क्या है? हुसैन की मोहब्बत है। तो पता क्या चला? ऐ दुनिया में नमाज पढ़ने वालों, जब तक तुम नमाज में आले नबी का नारा लगाओगे, तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तुम्हें या अली या हुसैन मकाम में कहना होगा। क्या कहना होगा? या अली या हुसैन नमाज में कहना होगा, तब तुम्हारा दीन मुकम्मिल। आप कहेंगे मौलाना गाना हो गया है, नमाज में किसी यानी कहे या अली या मोहम्मद कैसे कहेंगे? आओ प्यारे, आपका नियत मानी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा की फर्ज, अल्लाह ताला के वास्ते पीछे इस्लाम थे, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर करके मान लिया, सारा आप पढ़ेंगे, सूरह फातिहा इमाम पढ़ेगा, सूरह यासीन इमाम पढ़े या कोई सूरा पढ़े, फिर अल्लाह अकबर कह के रुकू में इमाम जाएगा, आप भी रुकू में जाएंगे, आप सुभान रब्बियल अज़ीम कहेंगे, इमाम भी कहेगा। अगर इमाम 5 बार कहे तो कहे, आप 3 बार कहे तो कहे, 5 बार 3 बार 7 बार जो भी है, फिर अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो गए। फिर उसके बाद में आपको रब्बना वलकल हम्द कहना होगा, अल्लाहु अकबर करके सजदे में गए, सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना होगा, इमाम भी कहेगा, आप भी कहेंगे। उसके बाद 2 रकात के बाद में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये आले व अला आले मुहम्मद कौन है? अरे बोलिए, नबी के आल कौन है? अली फातिमा है या नहीं है? पंडित पाक है या नहीं है? तो आप नमाज में या अली कह रहे हो कि नहीं, या फातिमा कह रहे हो कि नहीं, या हसन हुसैन कह रहे हो कि नहीं? तो जब तक तुम नमाज में पंडित पाक का जिक्र, उनकी तसव्वुर, उनकी मोहब्बत अल्लाह के सामने में पेश नहीं करोगे, तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। अगर तुमने आले नबी औलाद नबी को छोड़ा तो नमाज में वाजिब तक हो। अब नमाज में जब वाजिब तक होती है तो क्या करते हैं? दंड लगता है। क्या लगता है? 2 सजदा इस्तिरा करना पड़ेगा। तो इसीलिए अल्लाह ने अत्तहियात को नमाज में वाजिब करार दिया। इसलिए वाजिब करार दिया कि इसमें आले नबी औलाद नबी को पुकारना है। ऐसा बेनमाजी, ऐसा नमाजी न हो कि जिसके दिल में अहले बैत की गद्दारी हो और वो फिर कहे कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ। तो इससे पता क्या चला? मेरे गरीब नवाज बता दिए कि अगर कब्र के सवाल को दुनिया में तैयारी करके जाना है तो हुसैन के मोहब्बत में सरसार हो जाओ। फरिश्ते तुमसे पूछेंगे
जाना मेरे वजूद में। बस एक वाक़या तवज्जो के साथ समाप्त करूं। नबी के घराने वाले जुल्म तो सह गए, लेकिन कभी किसी को जुल्म ढाया नहीं, सबने किया। इसीलिए आज हम अपने बच्चों के नाम कभी हैदर रखते हैं तो कभी हुसैन। यजीद ने जुल्म ढाया, उसके नस्ल के जो भी हैं मिले, वो अपने बच्चे का नाम यजीद ले रखे है। कोई बड़ा ऐसे तस्वीर देखा है? कोई नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि जुल्म का नाम और सब्र का नाम सुनिए। अब करबला के मैदान में जो भी हुआ खूनी मंजर, रसूल आजम के घराने वाले को तकलीफ देकर लोगों ने जहन्नम खरीदी, फिर भी ये जंग बंद नहीं हुई। उस जमाने में एक मुख्तार शक्ति नाम का गवर्नर पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? गवर्नर मुख्तार शक्ति। चुन चुन के एजेंटियों को उसने कत्ल किया, यहाँ तक के उसका जुल्म एजेंटियों को ऐसा शिद्दत थी कि यजीद मर गया था कॉलेज के बीमारी में। पेट का दर्द में एक बीमारी ऐसी है कि तड़प तड़प के मर जाता है, उस बीमारी में मरा। इब्न ज़ियाद भी बहुत भयंकर मौत मरा है, सिमार भी मरा। फिर कभी मौका आएगा तो मैं बताऊंगा कि मेरे हुसैन का घराना कैसे बताना था। हाँ, तो मालिक इब्न मुस्तर के क़ियादत में ये मुख्तार शक्ति जो है कई हजार लश्कर देके लहरे फरात को भेजा कि जाओ जितने भी बेइज्जती है सबको चुन चुन के गाजर मूली की तरह काटो, क्योंकि इन्होंने आले नबी और आले नबी को तकलीफ दी है। मामला ऐसा हुआ, गाजर मूली की तरह काट काट के लहरे फरात में आया गया, तो उसी में जो नाहनजाल इब्न ज़ियाद था वो मैदान छोड़ के किधर की तरफ भागा। पीछे पीछे मालिक इब्न मुस्तर के सिपाही और ये मुख्तार शक्ति के सिपाही दौड़ रहे हैं, वो आगे भाग रहा दौड़ता। अब वो मेरे फरात से जंगल की तरफ निकल पड़ा, तो जंगल और बयाबान में एक छोटा सा कुटिया नजर आई। कुटिया समझते हैं, झोपड़ी। तो जब कुटिया नजर आई तो उसमें एक बुजुर्ग कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। वो कुटिया जो है वो झोपड़ी नूर से चमक रही थी और वो बुजुर्ग के चेहरे से नूर टपक रहा। अब घबराया हुआ है, कांप रहा है, कांप रहा है, और जा गया दरवाजे पे। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बुजुर्ग है, लेकिन ये नाहनजा समझ गया कौन है। तो कोई और नहीं थे, मेरे हुसैन के जो साहबजादे थे, एक बच्चे थे ना करबला में, हजरत सैयद आबदी, जिनके सदके में अल्लाह का मुतक़ीन पहुंचा। कुरान पढ़ रहे थे, अब देखा तो गया शर्मिंदगी करे तो कहाँ पे आ गया। फिर भी कहा कि चलो पहचान नहीं पाए होंगे, जिसकी सोच वैसे तो कहा कि हुजूर बहुत दूर का प्यास लगी है, पानी पिलाओ। या अल्लाह ताला ने तो मखलूक की खिदमत के लिए पैदा किया है। तिलावत कुरान छोड़े, सुराई पे गए, मक्का पे पानी कटोरे पे दिया, दे दिया, पी लिया। इतना मतलब प्यासा था, कहा कि हजरत और एक कटोरे देना, पीजिएगा। आप बेशक लो। ये सोच रहा है कि साहब मुझे पहचाने नहीं। तो अब मोहतरम मतलब फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मक्का पे गए, पानी लाते दिया, कहा कि और एक कटोरी चाहिए, और एक कटोरी चाहिए, फिर भी एक कटोरी लाए। अब वो नाहनजाल कहता है कि हजरत मुझे आप पहचाने नहीं, कौन इब्न ज़ियाद? इतना कहना था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू तारी हो गए। अरे नाहनजाल, इन्हें कौन नहीं पहचान सकता है? मेरे आंखों के सामने मेरा 6 महीने के भाई हजरत अली असगर के गले में 3 चुमाने वाले तुम हो। मेरे जवान भाई अली अकबर के जिस्म पे घोड़े दौड़ाने वाले तुम हो। मेरे जानी भाई
वाकयात को बताता हुआ नजर आता है कि जिसका जैसा औलाद होगा, जिसका जैसा नस्ल होगा, जिसका जैसा खानदान होगा, वो उसी तरीके से पेश आएगा। मेरे नबी का खानदान तमाम नबियों से अफजल वाला है, तो उनका बच्चा बच्चा भी तमाम बच्चे बच्चों से अफजल वाला है। तो वो जुल्म सहकर सब्र करते हैं, लेकिन जुल्म का बदला जुल्म से नहीं देते, बल्कि मोहब्बत से पेश करते हैं। यही तालीम हमें हुसैन ने दिया है, और जब से हमने उनकी तालीमात को भूल गए, आज मुसलमान जलील को कवर नजर आता है। नहीं आ रहा है आज हिंदुस्तान में मुसलमान के नाम से लोग नफरत करते हैं। क्यों करते, क्यों करते? क्या तुम्हें पता नहीं कि इसी हिंदुस्तान में इंदौर का एक राजा था। कौन था? इंदौर का राजा। जब करबला में मेरा हुसैन 72 नफीस कुदसिया को लेकर यजीदियों के सामने मुकाबला कर रहा था, इंदौर के राजा को पता चला वो मुसलमान नहीं था। कौन था वो? घंटा बजाने वाला था कि नबी के खानदान वाले को यजीदियों ने, उन्हीं के गुंडा वालों ने, उन्हीं के कदमों पर यानी पढ़ने वालों ने करबला में सता रहे हैं। तो इसने यहाँ से 23,000 लश्कर भेजा था कि जाओ हुसैन के तरफ से यजीदियों को निशाना कर दो। वो कौन था? तारीख बताऊंगा मैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, झूठ नहीं है। इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर इंदौर का राजा जो है हुसैन के तरफ से अपना लश्कर भेजा था। तो पता क्या चला? मेरा हुसैन हक पर थे। हुसैनी आज दावा करने वाला हक पे नहीं है। समझ में आ रही है कि अगर हम हुसैनी हक पर होते तो वो बातें साथ जब वो हुसैन के साथ में रहने के लिए तैयार है, तो आज यहाँ का हुकूमत हमारे साथ हो जाती। दाढ़ी रख के चोरी करेंगे, दाढ़ी रख के शराब पिएंगे, दाढ़ी रख के जिना करेंगे, फिर कहेंगे मौलाना खराब है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक आदमी खड़े होकर पानी पी रहा है, खड़े होकर पानी पी रहा है, और एक आदमी बैठा है उनके हाथ में पानी पी रहा है। अब बताओ दोनों सही है क्या दोनों गलत? अरे बोलिए, दोनों सही है दोनों गलत? दोनों गलत है। लेकिन जो खड़े होकर पानी पीने वाला जो है, उल्टे हाथ से पानी पीने वाला क्यों बुरा पिया? उल्टे हाथ में पानी बाबा है। अरे तू भी तो खड़े होकर पानी पिया, खड़े होकर पानी पीना शैतान का तरीका है, तो उल्टे हाथ से पानी पीना शैतान का तरीका है। तू भी शैतान का पैर उठा है, वो भी शैतान का पैर उठा है। तुम दोनों को किसी का मुकाबला करने की कोई हक नहीं बनती है। पहले दोनों तौबा करो, पहले दोनों तौबा करो, फिर दीन की बातें करोगे। ये आज मुसलमानों के अंदर है। जब से ये खुराफात खत्म नहीं करोगे, प्यारे दलील हो जाओगे, दलील हो जाओगे। तुम्हारे नमाज़े ज्यादा कोई मुत्तकी पढ़ने वाला नहीं होगा, पढ़ेगा तो शराबी पढ़ेगा, पढ़ेगा तो हरामखोर पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला का जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। हुसैन के मानने वाले को मुसलमान ही कहते हैं। तो अल्लाह के बारे में दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे और कुल मुमिनीन को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जीने और उनकी मोहब्बत में मरने की तरीका का फरमाए। पहले सुनने में अगर कोई लफ्ज़ खता या गलतियाँ हो गई हो, किरामत कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हक कहने कहने से बल्कि अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अलैना इल्ल सलाम मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।